آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے. خدا سے کہیں گے احد باجی آج کا کلام جو احد باجی جس بندہ کے پاس احد باجی آج کا کلام احد آباد تو ہماری زندگی کے لیے احد باجی ہو یسوع باجی. احد باجی ہم پاسٹر شہزاد کو احد باجی تیرے پاک لہو کی تابع میں کر دیتے ہیں یسوع باجی. احد باپ جب وہ بولتا ہے تو احد باجی وہ نہ بولو اس ہو کہ تو بولنا اور کلام کرنا یسوع باجی. ہم کہیں گے احد باجی آج احد باجی جب احد باجی تیرا بندہ احد باجی ہمارے درمیان کلام کی صداقتوں کو کھولے تو احد باجی وہ نہ بولو اس میں ہو کہ تو بولنا اور کلام کرنا. آج کے کلام کے وسیلہ سے احد باجی ہماری زندگیوں کو بدلنا. آج کے کلام کے وسیلہ سے احد باجی ہمارے احد باجی گھرانوں میں برکت آئی یسوع باجی. ہماری زندگیاں ہماری سوچیں ہمارے احد باجی خیالات بدل جائیں یسوع باجی. احد آباد تو رحم کر فضل کر. ہاللویا آمین ہاللویا. یقیناً خداوند کی حضوری اور مموری یہاں پر موجود ہے. ہم اس کے لیے زور سے تالیاں بجائیں گے اور پاسٹر شہزاد کے لیے بھی ہم مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں خداوند باپ کا نہایت شکر گزار ہوں. اس نے مجھے فضل بخشا کہ میں پھر سے اس کے حضور میں حاضر ہو کر اس کے کلام کو آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں. آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت سے پڑھیں گے. اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا ہے اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس لیے ساری بدی بدکاری کو اور ہمارے اندر جو بدکاری اور گند ہے جس کو دور کر کے جب ہم دیکھیں جب ہم خداوند میں آتے ہیں توبہ کرتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں خداوند کو قبول کرتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہیں وہ ہم سے جاتی رہیں. ہمارے اندر کی برائیاں ہم سے دور ہو جائیں اور جو کچھ ہم بولتے رہیں جو کرتے رہیں وہ ہم دوبارہ نہ کریں اور ایٹومیٹکلی دن بہ دن ہم ان باتوں کو نہ دہرائیں جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہمیں پہلے برائیاں تلاش کرتے رہے ہیں وہ دوبارہ نہ کریں. جو برائی ہماری کرتے رہے ہیں عیب جوئی کرتے رہے ہیں وہ ہمیں نہ کریں. تو جو پہلے ہم کرتے رہے وہ نہ کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پرانی عادتوں کو کیا کریں نئی عادتوں سے بدل ڈالیں. پرانی عادتوں کو نئی عادتوں سے بدل ڈالیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت ساری بری عادتیں رہی ہوں گی. پہلے ہم کوشش کرتے ہیں ہم نے ہو سکتا ہے ہم جھوٹ بولتے رہے ہوں ہو سکتا ہے ہم دوسروں کی عیب جوئی کرتے رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ جب بھی ہم ایک دفعہ کسی سے نفرت کی اور دوبارہ اس کے لیے ہمارے دل میں محبت نہیں آئی. ہمیشہ ہم اس کے لیے ہمارے دل میں نفرت ہی رہی اور ہم اس میں برائی تلاش کرتے رہے. ایسا ہے نا ہم اس میں برائی تلاش کرتے رہے. تو اور اگر ہم جھوٹ بولتے رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ جھوٹ نہ بولیں. لیکن جب جو چیز ایک عادت بن جاتی ہے ہمارے جسم کے اندر ہماری عادت بن جاتی ہے وہ دوبارہ اتنی آسانی سے نہیں جاتی. وہ عادت جو ہے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتی. تو ایک تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ انسان ایک کام جو ہے 6 سے زیادہ بار کرتا ہے نا وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. 6 سے زیادہ بار کرتا ہے تو وہ اس کی کیا ہوتی ہے عادت بن جاتی ہے اور وہ اس کو دہرانا شروع کر دیتا ہے اور لوگ بار بار اس کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی عادت ہے. اب اگر انسان ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ بار بار اس کو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے. وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے پھر اس کو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے
और वो समझना लग जाता है कि झूठ बोलने में ही फायदा है, झूठ बोलने से ही मेरी बहुत सारी बुराइयां, मेरे बहुत सारे ऐप छुप जाते हैं। तो वो उसको दोबारा दोबारा दोहराना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा आहिस्ता ऐसा झूठ से उसे नुकसान भी होता है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं छोड़ता। लेकिन ऐसा ऐसा वो सुनने वाले जो होते हैं, उसको सुनने वाले, उसके मिलने मेल जोल वाले, वो उसको समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि छोड़ो यार, ये इसकी आदत है, ये इसकी आदत बन चुकी है, ये उसकी आदत बन जाती, वो उस पर कान नहीं धरते। जैसे हमने बहुत दफ़ा हम जब स्कूल में थे तो हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी कि एक बच्चा जो होता है वो अब बकरियां चराता है और पहाड़ी पर खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से चलाता है कि शेर आ गया, शेर आ गया। एक दफ़ा लोग जाते हैं, दूसरी दफ़ा लोग उसकी मदद के लिए जाते हैं, तीसरी दफ़ा जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो जब सचमुच में शेर आ जाता है तो क्या होता है कि वो लोग कहते हैं नहीं यार, ये आज भी झूठ बोल रहा है। तो इसलिए झूठ बोलना इसकी आदत बन जाती है। तो वो उसको दूर करना चाहता है। जब हम खुदावंद में होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम इस आदत को दूर करें। इसी तरह ऐप जोई करना भी हमारी आदत बन जाती है। ऐप जोई करते हैं कि जब हमारा दोस्त रिश्तेदार हमारे पास बैठा होता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है तो हम पीछे से उसकी बुराई या कोई उसकी ऐप जोई या उसकी पुरानी बात को याद करना शुरू कर देते हैं, हम उसकी ऐप जोई करना शुरू कर देते हैं। तो इसको भी, ये भी हमारी आदत बन जाती है और हम उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं, कहते हैं। लेकिन इसको भी हम अगर दूर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि खुद जब हम खुदावंद में आते हैं, जब कलाम में लिखा कि ऐप जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐप जोई ना की जाए, तो हमें भी वो काम नहीं करना है। तो हमें भी चाहिए कि हम इस काम को दूर करने के लिए हर वो काम जो हमारे अंदर बुराई या नफरत पैदा करता है, हमारे अंदर हमें खुदावंद के कलाम से दूर करता है, हमें वो काम करना है, उस आदत को छोड़ना है और एक नई आदत को अपनाना है ताकि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाल सकें। अब अगर हम किसी से नफरत करते हैं ना, तो हम उसकी अच्छी से अच्छी बात भी हमें बुरी लगेगी, अच्छी से अच्छी बात भी हमें उससे बुरी लगेगी, उसकी तरक्की बुरी लगेगी, उसकी कोई तारीफ करेगा वो भी हमारे सामने हमें बुरी लगेगी। उसकी पास्ट अगर उसकी पास्ट में कोई हमसे दुश्मनी रही हो या कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो हम उसको याद करके उस नफरत को फिर दोहराएंगे। तो नहीं, वो भी हमारी आदत बन जाएगी। उसको आदत को भी दूर करना है, नफरत को, ऐप जोई को, झूठ बोलने को। हमारी बहुत सारी बुराइयां हैं। जैसे लोग सिगरेट भी पीते हैं, सिगरेट पीना भी आदत बन जाती है। लेकिन जब खुदावंद में आते हैं तो बहुत सारे लोग शराब छोड़ देते हैं, सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, बहुत सारे काम छोड़ देते हैं, जो बहुत सारी बुराइयां, जुआ खेलना छोड़ देते हैं। लेकिन तो वो इसी तरह होता है कि लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे ऐसा खुद ब खुद नहीं छूटती। उसके बदले देखते हैं कि जब हम ऐसे देखें कि आदतें जो है खुद ब खुद नहीं छूटती हैं, उसे हमें छोड़ना पड़ता है। इंसान जब पैदा होता है तब वो मुआशरे के बारे में, सोसाइटी के बारे में नहीं जानता कि वो क्या है। इंसान बिल्कुल सादा, कोई उसे पता नहीं होता मुआशरे के बारे में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आदतें उसके अंदर परवान चढ़ती हैं। वो घर से सीखना शुरू करता है, कुछ वो मुआशरे से सीखता है। आहिस्ता वो अपने दोस्तों यारों से उन आदतों को सीखता जाता है और वो आदतें उसके अंदर परवान चढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर अच्छी चीज़ें हों तो वो अच्छी चीज़ें ही उसके अंदर परवान चढ़ेंगी, चाहे वो कितना भी अच्छे घर का हो। अगर बुरी आदतों में पला बढ़ा है तो उसके अंदर बुरी आदतें ही परवान चढ़ेंगी। अगर इंसान जितने भी माँ बाप उसके पीछे बुरे रहे हों, अगर वो अच्छे लोगों में पढ़ा लिखा है, तो अच्छी आदतें ही उसमें परवान चढ़ेंगी। तो इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि हम उन आदतों को अपने अंदर जांचें। हम देखें कि अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर किसी ना किसी वक्त हम झूठ बोलते हैं, तो हम उस वक्त खुदावंद के कलाम पर नजर करें और ये देखें कि अगर हम इसमें देखें कि लिखा है कि इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया हो और तुम्हारी रूहों को निजात दे सके, तुम्हारी रूहों को निजात। अगर हम अपने दिमाग की, दिल की गंदगी को दूर करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अगर हम कहीं भी झूठ बोलते हैं तो अपने आप को वहीं रोकें। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल भी देते हैं कि यार कोई हमसे कोई चीज़ कहता है या कोई
किसी मौका पर हम बिला वजह किसी से झूठ बोलते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम उसी को सच में बदल दें। उससे आप अपोलोजाइज कर सकते हैं, उससे कहें सॉरी यार ऐसा नहीं था, वो ऐसे ही मेरे मुंह से गलत बात निकल गई। जब हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, जब हम उसको अपोलोजाइज कर लेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे कि यार सॉरी ये गलत बात मेरे मुंह से निकल गई, ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है, आप उसे सच में कन्वर्ट करेंगे। तो कहते हैं कि अगर आप 6 से 7 बार वो करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, जब आप झूठ बोलेंगे तो आप बार बार उसको 6 से 7 बार सच को रिपीट करेंगे, तो आप फिर से वो सच ही बोलना शुरू कर देंगे। क्या? सच बोलना शुरू कर देंगे, वो आदत आपकी जाती रहेगी। अगर आप में ऐप जोई है, अगर आपके अंदर ऐप जोई है, आप दूसरों की बुराई करना पसंद करते हैं, दूसरों पर हंसना पसंद करते हैं, तो क्या करना चाहिए कि हम जब भी ऐप जोई करने लगे तो हमें सोचना है कि हम अपने आप को बुराई करने लगे तो सोचना है नहीं यार, मैं उसकी अच्छी चीज़ों को याद करूं। क्या? मैं उसकी, अगर वो मेरा दोस्त है तो मैं उसकी अच्छी चीज़ों को याद करूं, मैं उन लम्हात को याद करूं जब उसने मेरी मदद की थी। वो किस वजह से, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है, अगर वो तरक्की कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है। मैं अच्छी चीज़ों को, उसकी अच्छी चीज़ों को याद करूं, बजाय इसके कि हम उसकी बुराई करके उस पर हंसे, हम उसकी अच्छी चीज़ों को याद करें। तो वो ऐप जोई की जो हमारे अंदर आदत है वो हमारे अंदर से जाती रहेगी, कि वही फार्मूला कहते हैं कि हमने 1 से 6 बार तक एक एक बात को बार बार उसको रिपीट करते रहेंगे, तो वो बुराई हमारे अंदर से जाती रहेगी। तो इसलिए हम अगर देखें कि हम झूठ बोलते हैं, ऐबजोई करते हैं, अगर हम किसी से नफरत करते हैं और हम बार बार उसको देखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यार ये मेरे सामने से हट जाए, या मैं इससे बात नहीं करना चाहता, तो अगर वो हमारे सामने आए तो हमें क्या करना है, उससे मुफासा करना चाहिए। कहते हैं कि हाथ मिलाएं, उससे प्यार मोहब्बत से बात करना, मुसाफा जिसे कहते हैं। अगर हम उसे खुद मेल जोल बढ़ाएंगे, अगर हम ये याद करें कि हम मुआशरती ज़िंदगी में नहीं, हमें अपने गुरूर को नीचे छोड़कर, साइड पे छोड़कर ये सोचना है कि हम कलाम के मुताबिक ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम कलाम के मुताबिक ये कर रहे हैं कि हम मुसाफा कर रहे हैं, मैं उसके साथ अब नफरत नहीं रखूंगा, मैं उसके साथ दुश्मनी नहीं रखूंगा, मैं उसके साथ मेल मिलाप रखूंगा, मैं उसके साथ मोहब्बत रखूंगा, मेरे अंदर उसके लिए नफरत नहीं रहेगी। तो हर इंसान जिससे आप नफरत रखते हैं, या आपके अंदर उसके लिए बुराई है, तो वो हमेशा आपके लिए वो आदत आपकी उससे छूट जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि पुरानी आदतों को नई आदतों से बदल डालें, पुरानी आदतों को नई आदतों से बदल डालें, तो हम मसीह में नए इंसान होंगे, तो ही हम निजात हासिल कर सकते हैं। आइए कलाम का 10 से आगे देखते हैं। इफ्सियों के नाम खात उसका 4 बाब, उसकी 22 से 24 आयत पढ़ेंगे। कि तुम अपने चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन। तो हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने के लिए, हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने के लिए भी कोशिश करते हैं, खुदावंद से दुआ करते हैं, और खुदावंद ही हमें हिकमत देता है। खुदावंद हमें हिकमत देता है जब हम कोशिश करते हैं, खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद मेरी पुरानी बुराइयां जो हैं, मेरे अंदर बुराइयां हैं, वो बुराइयां मुझसे जाती रहें। तो हम क्या करते हैं कि अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। खुदावंद ने लिखा है कि जब हम रूह में होते हैं तो हमें खुदावंद हिकमत देता है, तो हम खुदावंद में नए बनते जाते हैं, नए लोग बन जाते हैं। और जब लोग हमें नई हालत में देखते हैं तो वो इस बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में गुमान करते हैं कि यार
ये बंदा 1 साल पहले या 2 साल पहले कैसा था और अब कैसा है, जो खुदावंद के साथ चलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, सिगरेट भी पीते थे, लेकिन खुदावंद में जब जैसे ही उन्होंने खुदावंद के साथ चलना शुरू किया तो खुदावंद में उनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई, उनकी आदतें बदल गई। ये सब किस तरह होता है? खुदावंद के कलाम की वजह से होता है। खुदावंद हमारी रूह को, हमारी रूहानी तौर पर हमें गाइड करता है, हमें हिकमत देता है कि हमारी आदतें बदल जाएं। और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। इसलिए मेरे अजीज़ों, नई इंसानियत को पहनने के लिए, नई इंसानियत को नया इंसान बनने के लिए, एक मुआशरती इंसान है, एक रूहानी इंसान है। मुआशरती होता है जो वक्त के मुताबिक हर काम कर लेता है, वो वक्त के मुताबिक झूठ बोल देता है, वक्त के ज़रूरत के मुताबिक ऐप जो भी कर लेता है, ज़रूरत के मुताबिक, यानी कि जो काम, यानी कि अगर वो चोरी चकारी भी कर लेता है, ज़रूरत के मुताबिक खुदावंद में भी चलता है, ये सब काम है। लेकिन जो रूहानी होते हैं, जो खुदावंद में चलते हैं, वो सिर्फ खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलते हैं। उनमें वो आदत नहीं होती हैं, वो हमेशा खुदावंद के लिए साथ झूठ नहीं बोलते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं। वो किसी की ऐब जोई नहीं करते हैं, वो किसी की बुराई करना पसंद नहीं करते हैं, वो किसी से नफरत नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि वो एक नया मुआशरा बने जो खुदावंद के मुताबिक हो। वो चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी थी, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया, उसने किसी से नफरत नहीं की, इसलिए हमें भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। वो दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना पसंद करते हैं, दूसरों के लिए कुर्बानी देना पसंद करते हैं। वो खुदावंद के जलाल के लिए तकलीफ उठाना भी पसंद करते हैं। वो सब काम करना पसंद करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया, जो खुदावंद का कलाम कहता है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को बदलें, खुदावंद अपनी आदतों को बदले, अगर हमें अपने आप में झांक कर देखें कि कौन सी ऐसी आदत है, कौन सी बुरी आदत है जो खुदावंद के कलाम से अलग करती है, जो खुदावंद के कलाम से दूर करती है, जो हम ये कहती है कि तुम खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे, उसके मुताबिक हम दिली तौर पर, ज़हनी तौर पर सेटिस्फाई महसूस नहीं करते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि यार ये बुराई है हमारे अंदर, इसको दूर करके ही मैं खुदावंद में खुश हो सकता हूँ। मैं अपने आप को तसल्ली बख्श, इत्मीनान बख्श महसूस कर सकता हूँ कि खुदावंद ने मेरे अंदर से सब चीज़ें मेरे अंदर से निकाल दी हैं। खुदावंद ने मेरे अंदर से सारी बुराइयों को, मेरे अंदर से उन बुराइयों को दूर कर दिया है जो मेरे अंदर गुनाह की जड़ पकड़ती थी। तो खुदावंद इसलिए चाहिए कि हमें एक करके उन आदतों को, एक बुराई को दूर करना है, उनको बुराइयों को देखना है और उसके ऑपोजिट वो चीज़, उसका ऑपोजिट तलाश करना है जिसकी वजह से हम उस आदत को छोड़ सकते हैं। आइए कलाम का इसमें ऐसे देखते हैं। कुलसियों का नाम खात, उसका 3रा बाब, उसकी 8वीं से 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। ये वही चीज़ है कि हम झूठ ना बोलें, ऐब जोई ना करें, पुरानी इंसानियत को
उतार डालें। अगर हम मसीह में हैं तो हमें पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। अगर हम मसीह में हैं, कोई बारिश नहीं आएगी जिससे हमारी पुरानी आदतें छूट जाएंगी। हमें खुद उन आदतों को छोड़ना होगा। हमें खुद उन आदतों को छोड़ना होगा। हमें खुद कोशिश करनी होगी। हम अपने अंदर डे बाय डे, एक दिन यके बाद दीगरे, हमें देखना होगा कि हमारी कौन सी आदत छूट गई है। हमें देखना होगा कि हमारी अंदर कौन सी आदत हमारी मौजूद है। हमें एक दूसरे से झूठ ना बोलें, हम एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी गलतियों को मत छुपाएं, तो ही खुदावंद हम रूहानी तौर पर कहते हैं कि एक नई इंसानियत में ढल सकें। तो इस तरह होगा कि हम अपनी पुरानी आदतों को नई आदतों से बदल डालेंगे। तो खुदावंद हमें बरकत दे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।